Hello guys, me Subodh Kumar Mishra. Welcome back to my YouTube channel Paramount Vision with the third part of the first step of learning English. Today I am going to teach you about a dictionary. Dear students, everyone has a dictionary, and of course all of you have also a dictionary. But do you know the meaning of the dictionary? What is a dictionary? In general sense, we can say that a dictionary is a word bank. It is a word store. As you know, money is stored in bank. Thus, words are stored in dictionary. It enriches our vocabularies. Actually, a dictionary is a book which includes all kinds of words with their meaning and their class as well. We have different kind of dictionaries. Some of the dictionaries are very small, which you can keep in your pocket. So they are called pocket dictionaries. Different languages have their own dictionaries. In English, we have dictionaries which deals the meaning of English words to English or English to Hindi or English to other words, means other regional languages. If someone belongs to West Bengal, he has the dictionary which has meaning from English to Bangalore, English to Bengali, or Bengali to English. If someone belongs to Odisha, he has dictionary from English to Odia or Odia to English. Dictionary is very important part of our study. It is the world of information technology and everyone has smartphones, of course. And you guys search the meaning of any difficult word in Google on your phone, but it is not very good habits for small children, small classes students. You must develop to study about dictionaries, pocket dictionaries, or any dictionary. You can make yourself able to find the word in the dictionary. It is very interesting, it is very funny also. It is a game for you. You can play it. The play of vocabulary. For example, 4 students sit in the room. All the 4 students have pocket dictionaries. The teacher tells them, find the word lieutenant. Come on, start. Then all the students will try to search in the dictionary. And who is more intelligent can find easily. And this is the game. If you
got first? If you get first, it means you are the winner. You have more IQ than other three boys. And it is a very funny, interesting game. It is a creative game. It is more creative than you play on your mobile. Dear student, come to the point now. How words are arranged in a dictionary? You must know how words are arranged in dictionary. Words are arranged in alphabetical manner in the dictionary. What is the alphabetical manner? Alphabetical manner means the words belong to A is placed in the beginning. The words belong to Z placed at the end of the dictionary. So according to alphabet, the first letter A and all the words belong to A are set in the beginning, then B, then C, then D, consecutively all the letters and their words are formed and placed in the dictionary. मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इस बात को समझाना चाहूंगा। टू द पॉइंट में आइए, देखिए कि डिक्शनरी है क्या जी। तो डिक्शनरी हम लोग जान रहे हैं वर्ड बैंक है, वर्ड का बैंक है, वर्ड का स्टोर है। ये हमें ध्यान दीजिए इंफॉर्मेशन देता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है वर्ड के बारे में। अब एग्जांपल ले लीजिए, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन देता है जी। सपोज कीजिए हमको वर्ड कैट के बारे में जानना है, हमको एक वर्ड कैट के बारे में डिक्शनरी में जानना है। देखिए ये मैं एग्जांपल, इजी एग्जांपल दे रहा हूं। आप सोचोगे अरे कैट के बारे में क्या जानना भाई, कैट तो जानते ही हैं, कैट मीन्स बिल्ली। जी नहीं, आप उसको देखिए तो एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझिए तो कि कैट, हम सबसे पहले डिक्शनरी में ए से वर्ड रहेगा तो हम ए बी सी थर्ड पोजीशन में जाएंगे डिक्शनरी में और उसको ढूंढेंगे कैट। वहां पर कैट मीन्स बिल्ली भी लिखा हुआ रहेगा। कैट क्या चीज है, नाउन है, उसका क्लास क्या है, बिल्ली। लिखने के बाद अगर हिंदी के लिए है तो वो बिल्ली आपको मिल जाएगी, बिल्ली लिखा हुआ आपको वहां पर मिल जाएगा। फिर उसका फॉर्म क्लासेस यानी वो किस कैटेगरी का वर्ड है, अर्थात नाउन है, प्रोनाउन है, वो आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग मिल जाएगा। ये सारी बातें, उसका जेंडर मिल जाएगा, मेल है फीमेल है, हर चीज उसमें लिखा हुआ रहेगा। उस वर्ड के बारे में डिटेल, उस वर्ड के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, पहला पोजीशन में ए रहता है, फिर बी सी डी आएंगे, पांचवा पोजीशन में जाएंगे तो ई मिलेगा, 10वां पोजीशन में जे मिलेगा, 15वां पोजीशन में ओ मिलेगा, 20वां पोजीशन में आपको टी मिलेगा और 25वां पोजीशन में आपको वाई मिलेगा। डिक्शनरी में जब भी डिक्शनरी में आप खोजोगे तो ऐसे ही देखना होगा, आपको पेज पलटना होगा और आपका आईक्यू भी बढ़ेगा। इसलिए प्लीज लीव द गूगल, यू गाइज प्लीज। Of course, Google is very useful, but if you want to develop your creativity, और मेरा गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों को पॉकेट डिक्शनरी अवेलेबल कराएं और उनके साथ खेलें। वर्ड गेम खेल सकते हैं आप, वर्ड गेम डेवलप कर सकते हैं। 2-3 बच्चों को साथ में बैठा दिया और बोल दिए कि चलो भाई डिक्शनरी खोज के दिखाओ, डिक्शनरी में जो पहले खोजेगा उसे मैं टॉफी दे रहा हूं, उसे मैं प्राइज दे रहा हूं। फिर देखिए बच्चों में जो है ना क्रिएटिविटी बढ़ेगी और थोड़ा मोबाइल से दूरी भी बढ़ेगी।
ये जो आइज प्रॉब्लम बच्चों में आ रहा है, ओबेसिटी आ रहा है, ये बहुत तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, लेजीनेस आ रहा है, उससे बच्चों को मुक्ति दिलाने का ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने बच्चों से वर्ड गेम खेल सकते हैं। चलो बाबू ढूंढ के दिखा, कितनी जल्दी, मैं टाइम सेट कर दे रहा हूं, 10 सेकंड मैंने दिया, कम ऑन, रेडी, ढूंढ के दिखाओ, तुम हमको अल्फाबेट ढूंढ के दिखाओ। तो इट इज द वे टू डेवलप योर चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी माय डियर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, ये मेन पॉइंट्स मैंने बतलाया है डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी सबके पास है, लेकिन क्या है डिक्शनरी, इसका डेफिनेशन और हर बात को मैंने संक्षिप्त में बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और थैंक यू सो मच टू वॉच माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। और प्लीज 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 आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मैं आपके बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रतिदिन क्लास लेकर अवश्य आऊँगा और अच्छी अच्छी बातें होप बताऊँगा और आप अवश्य लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।